मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, एक तरफ प्यार है चाहत है वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है गद्दारी है, बस्तियां सहमी हुई सहमा चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। थैंक यू। तो बंद कर देना। Thank you so much. Youth are the pillars for a strong nation. To nurture the youth in right direction and with elegance is equally important. With these thoughts, I would like to invite our Principal Sir, Professor S.P. Singh, for his presentation. A very good morning. CTO, Dr. Neeraj Emmanuel Yesudas, for conducting the program. The presenter of the report. Meena, who sang an all-time favorite song sung by the Minister. Who sang another patriotic song. Present here. I need to take this opportunity on behalf of Siddharth College to congratulate Siddharth College NCC Air Wing Unit for conducting Atmanirbhar Bharat program so well. It was a delight and a pleasure to go through your report and see the variety of themes that you have covered in this period of time, in this fortnight. And as a disciplined force, we are proud of you and we really extend our best wishes, and we want to see you fulfilling your aspirations and our aspirations as an institution and as a nation. We have a very interesting theme on which we had deliberations, the theme which was given to us by the Prime Minister himself, that is Atmanirbhar Bharat, or self-reliant India. Self-reliant India definitely cannot be a country which does not depend on others. The world that we are growing in, जिस दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं,
It is a world which is marked by interdependence, which is marked by networks. No country can think of being an island and living away from the rest of the world. Yet what self-reliant India means, India which is able to contribute to others, India which unleashes its potential, India which is capable to solve its problems, and also to be a guidepost, a beacon, and a light to other nations of the world. And indeed, there are certain distinctives we have as a nation. We are one of the largest bodies of people among us. Our population, which is second, is soon going to be the largest in the world. And a very significant aspect of our population is that it primarily consists of young people like you. And it is wonderful to be young. Very often we talk about the kind of energy, the kind of relentless, you can work relentlessly when you are young without giving way to the dictates or the constraints that your physical body imposes on you. So आपके पास ऊर्जा है, शक्ति है, उमंग है, और सबसे बड़ी बात भविष्य है. जिस प्रकार से आप अपने जीवन का इन आरंभिक वर्षों में निर्माण करते हैं, वो आने वाले भविष्य में आपकी दशा और दिशा, आपके परिवार का भविष्य, आपके संस्थान का भविष्य, आपके समुदायों का भविष्य, आपके राष्ट्रीय समुदाय का भविष्य और इस विश्व के भविष्य को निर्धारित करेगा. हमें गर्व है कि हम भारत में हैं. जितनी जलवायु, जितनी भौगोलिक परिक्षेत्र, जितनी प्रकार की भाषाएं और बोलियां, जितनी विविधता से आपका इस देश में रहकर साक्षात्कार होता है, ये आपके वैचारिक, मानसिक, भावनात्मक क्षितिज को उर्वर बनाता है यदि आप इन सारे अवसरों को उचित रूप से ग्रहण करें और अपने भविष्य निर्माण में, जीवन निर्माण में इन सारे अनुभवों का उचित रूप से प्रयोग कर सकें. आपके पास ये समय है जब आपके अंदर संभावनाएं हैं. किसी ने कहा कि एक युवा और एक बुजुर्ग में फर्क क्या है. युवा वो है जिसके पास अभी वास्तविकता कम है, लिटिल ऑफ रियलिटी एंड मोर ऑफ पोटेंशियलिटी. बुजुर्ग वो है जो अपनी वास्तविकता को पास पोटेंशियल थोड़ा बचा है. सो आपके पास पोटेंशियल बहुत सारा है और आपके कॉलेज होने के नाते हमारी ये आकांक्षा है, हमारी अभिलाषा है, हमारी कामना है कि आपका ये पोटेंशियल एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो सके, ताकि जब आप मुड़कर जीवन के एक स्थान पर विहंगम दृष्टि से मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपको गर्व और हर्ष दोनों का अनुभव हो सके. आप देख सकें कि आपके जीवन ने एक सार्थक योगदान दिया है. सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है विजन या दर्शन. दर्शन किस चीज का? आपके जीवन की संभावनाओं का. आप क्या करने जा रहे हैं. प्रेसिडेंट एपीजे कलाम बार बार कहते थे विजन क्या है? इट्स समथिंग, नॉट समथिंग दैट यू सी व्हेन यू स्लीप. रादर वो वर्ड ड्रीम यूज करते थे, बट इट इज समथिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप. ये वो चीज है जो गहराई से आप देखते हैं और आवश्यक है कि हम अपने जीवन के लिए एक विजन डेवलप करें, व्यक्तिगत जीवन का और एक सामूहिक जीवन का. जब आप विद्यार्थी हैं, आप देखें कि आप अपने कॉलेज में, अपनी यूनिट में क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, गर्व का अनुभव करा सकते हैं. आप व्यापक जीवन में किस प्रकार से अपने परिवार के लिए सार्थक योगदान दे सकते हैं, अपने शहर के लिए आप सार्थक योगदान दे सकते हैं, और इन्हीं योगदानों पर आपके राष्ट्र के प्रति योगदान की नींव रखी जाती है. क्योंकि राष्ट्र एक
अमूर्त विचार नहीं है, ये एक समुच्चय है। समुच्चय है संस्थानों का, समुच्चय है परिवारों का, समुच्चय है समुदायों का। और जब हम इस निर्माण होता है, आपका हर वो योगदान जो किसी भी संस्थान को समृद्ध करता है, जो आपके पड़ोसी को बेहतर महसूस कराता है, जो उसकी संभावनाओं को विकसित करता है, वो राष्ट्र के प्रति व्यापक योगदान है। और यही सच्चे मायनों में आपकी राष्ट्रभक्ति है कि आप अपने कर्तव्य का अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्थान में रहकर आप अनुसरण और पालन कर सकते हैं। और जब आप ये करते हैं तो आप राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति का परिचय देते हैं। आपके पास एक योजना होनी चाहिए। जॉन, अगर किसी ने कहा यदि आप अपने जीवन के लिए योजना नहीं बनाते हैं तो आप असफल होने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। इफ यू फेल टू प्लान, इंग्लिश में बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसे कहते हैं, they say if you fail to plan, you plan to fail, right? So I'm sure that you don't fail to plan and end up planning to fail, but rather you have a plan. प्लान भी किस चीज के लिए होना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं हम ये बन जाएं, हमारे पास ये हो, योगदान देंगे। हम कौन सा कौशल वो विकसित कर सकें जो कि बृहत्तर समाज के लिए, लार्जर कम्युनिटी के लिए लाभदायक हो, किस प्रकार से हम अधिक यूजफुल बन सकें। और यदि आपकी सोचने की ट्रेजेक्टरी ये होगी तो डेफिनेटली आप विश्वास मानिए आने वाले समय में आप अधिक सफलता का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा योगदान इस समाज को, इस विश्व को, इस परिवार, अपने परिवार और समुदायों को देने पाते हैं। ये आवश्यक है कि आप अपने स्वयं का विकास करें ताकि आप व्यापक विकास कर सकें। जॉन एफ कैनेडी ने 1969 में अमेरिकन नेशन से कहा, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जो आपने सुना भी शायद हो कुछ लोगों ने, कि डोंट से व्हाट अमेरिका कैन डू फॉर यू, टेल मी व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका। और यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मत सोचें कि भारत आपके लिए क्या कर सकता है, ये सोचें कि आप भारत के लिए क्या कर सकते हैं। भारत कभी कभी अमूर्त विचार होता है। आप ये सोचें आप अपने कॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये सोचें आप अपने शहर के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये सोचें आप अपनी एनसीसी की यूनिट के लिए क्या कर सकते हैं। और जब व्यवहारिक रूप से आप इनके लिए करते हैं तो आप अपने राष्ट्र के लिए योगदान देने पाते हैं। और इसी प्रकार से हम अपनी राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र प्रेम को एक व्यवहारिक रूप देने पाते हैं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने विश्व में हो रहे तीव्र गति से चल रहे परिवर्तन को समझें। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस इज चेंजिंग फास्ट। इंडिया ऑफ टुमारो will not be what India is today, and our lives will not be the same as they are now. ये आपके लिए एक एक्साइटिंग खबर भी हो सकती है और डिप्रेसिंग खबर भी, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से उसे लेते हैं, आपका दृष्टिकोण उसके प्रति क्या है। और खबर ये है कि आप जिस दुनिया में जन्म ले रहे हैं या बड़े हो रहे हैं वो एक बहुत स्टेबल दुनिया नहीं है, वो बहुत तेजी से बदलती हुई दुनिया है। बहुत कुछ फिक्स नहीं है, बहुत सारे रोल मॉडल्स नहीं है जो आपकी सहायता कर सकें। बहुत तीव्र गति से, द्रुत गति से परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन बहुत सारे कारणों से हो रहा है। पहली चीज, हमारे सामाजिक ढांचे बदल रहे हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ हम बात करेंगे, परिवर्तन चारों तरफ आ रहा है। और टेक्नोलॉजी बदल रही है। जिस प्रकार से हम मीटिंग कर रहे हैं, आप में से अधिकांश लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और फिर भी हम मीटिंग कर पा रहे हैं, ये संभव हुआ टेक्नोलॉजी के द्वारा। और आने वाले समय में हम और टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स को
नजदीक से देखने पाएंगे। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं विशेष रूप से आपके सामने इंगित करना चाहूंगा। पहली चीज, हमारे पास जेंडर रोल्स बदल रहे हैं। हमारी बेटियां, लड़कियां, बहनें, आपकी महिला मित्र, ये सब सशक्तिकृत हो रहे हैं। और ये सशक्तिकृत होने की घटना जो है, इतिहास में, कुछ हजार वर्षों के इतिहास में एक अद्वितीय घटना है, क्योंकि किसी भी युग में पहले इस प्रकार से महिलाएं न सशक्तिकृत हुई थी, न कार्य क्षेत्रों में आई थी। आपको गर्व होगा कि जो पहला बैच था एयरफोर्स ऑफिसर्स का, फीमेल एयरफोर्स ऑफिसर्स का, उसमें आपके कॉलेज से भी एक ऑफिसर मौजूद थी जो आपके सेंट जॉन्स यूनिट का प्रतिनिधित्व करती थी। कहने का अभिप्राय यह है, बहुत सारे देशों में आर्म्ड फोर्सेस में कम्बैट रोल्स में वीमेन आ चुकी हैं। एंड इफ यू लुक एट द वर्ल्ड, दे आर ऑक्यूपाइंग various occupational and professional and entrepreneurial spaces that were hitherto reserved for men. और इसी के साथ समाज की डायनेमिक्स बदलती है। इसी के साथ वो संघर्ष शुरू होते हैं जो पारिवारिक स्तर पर होते हैं, जो कि संबंधों के स्तर पर होते हैं। और विश्वास रखिए, राष्ट्र कोई अमूर्त विचार नहीं है। मजबूत परिवारों से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। आवश्यक है कि हम इन परिवर्तनों को समझें। और मैं विशेष रूप से पुरुष कैडेट से बोलना चाहूंगा कि वे इस चीजों के प्रति सजग और संवेदनशील हो। यह मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है। जिस प्रकार से आपकी माता या दादी या परदादी आचरण करती थी, आज की महिलाएं इस प्रकार से आचरण नहीं कर रही हैं। और इसलिए हम उस युग के रोल मॉडल्स को आज ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। वर्तमान को दोष देने से कार्य नहीं चलेगा। इसी प्रकार से आवश्यकता है वीमेन को कि वो और ज्यादा सेंसिटिव हो दूसरों के एस्पिरेशंस के प्रति। इट इज विद ग्रेटर सेंसिटिविटी एंड केयर that we can avoid lot of unnecessary conflicts. It is through realization of our gendered roles that we can create a ground for harmonious country. ये वो समय है जबकि कास्ट बैरियर्स खत्म हो रहे हैं। ये वो समय है जबकि क्लास बैरियर्स खत्म हो रहे हैं, जबकि अपवर्ड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के जो भी एस्पिरेशनल व्यक्ति है उसको अपवर्ड मोबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। और कभी कभी ये चीजें संघर्षों को जन्म देती है। और इसलिए ये आवश्यक है कि जो बुनियादी समतामूलक मूल्य हैं, जो बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो बुनियादी मानवाधिकार से संबंधित मूल्य हैं, उनको हम अवचेतन में आत्मसात कर लें ताकि हमारा जीवन एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण और संवेदनशील हो सके। और यदि हम इस प्रकार की एक मनोवृत्ति का अपने अंदर विकास करेंगे, हम एक सौहार्दपूर्ण परिवार समाज की आधारशिला रखते हैं और हम एक श्रेष्ठ भारत की ओर योगदान देंगे। आवश्यक है कि हम एक सेंट जॉन्स कॉलेज का जो मिशन स्टेटमेंट है वो कहता है कि हमारे अंदर वो विद्यार्थी टेक्निकल, शायद आप में से कुछ लोगों ने कॉलेज में चलते समय बोर्ड पर देखा हो कि आपके अंदर जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज हैं, जो साइंटिफिक टेम्पर है, जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज हैं, आप उसका प्रयोग कर सकें एक कंपैशनेट हार्ट के साथ उन लोगों के लिए जो कि वंचित हैं, जो कि परेशानी में हैं, जो कि आपकी तरह प्रिविलेज्ड नहीं है। और मैं विश्वास करता हूं हर भारतीय का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक विजन रख सकें उन लोगों के लिए जिन्हें सशक्तिकृत होने की आवश्यकता है, जिन्हें मजबूत होने की आवश्यकता है,
क्योंकि हमारा राष्ट्र तभी आत्मनिर्भर बन सकेगा, तभी उन्नत बन सकेगा जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। कुछ लोगों के सशक्त होने से राष्ट्र सशक्तिकृत नहीं होते। आवश्यक है कि हर व्यक्ति जो वंचित है, जो किसी भी कारण से परेशान है, जो किसी भी कारण से अपने को घिरा हुआ पाता है, किसी भी कारण से व्याकुलता का शिकार है, वो स्वतंत्र हो सके और आत्मविश्वास के साथ एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सके। हमारे देश में बहुत सारी विविधता है। एनसीसी का एक उद्देश्य ये भी है कि आपको राष्ट्र एक राष्ट्रीय विजन प्रदान करे। आपके देश में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनमें आप कुछ भी नहीं समझ सकते, बहुत सारे ऐसे खान पान है जिनसे आप परिचित नहीं है। आपने क्विजीन्स ऑफ इंडिया पे मैं देख रहा था कार्यक्रम किया, क्योंकि एनसीसी हमेशा विविधता की बात करती है और आपको प्रशिक्षित करती है कि आप राष्ट्र की विविधता के विभिन्न पहलुओं को समझ सकें। सो आवश्यकता है कि हम विविधता के प्रति सम्मान विकसित कर सकें। मनुष्यों के अंदर एक हर्ड मेंटालिटी पाई जाती है। जो हमारे जैसे दिखते हैं हम उनके साथ रहने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन विश्वास रखिए आप एक वैश्विक जगत के लिए बड़े हो रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोग पबजी या चेस या कोई और खेल खेलते हैं तो किसी के साथ भी खेल लेते हैं, उसमें नेशनैलिटीज की बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। आप लॉग इन करते हैं और रूटर आपको आपका गेम पार्टनर दुनिया में कहीं से भी ले आता है। तो आप अब इस ग्लोबल वर्ल्ड में बड़े हो रहे हैं जहां हर कदम पर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ बड़े हो रहे हैं। सो आवश्यकता है कि हमें पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता से निकलकर हर किसी का सम्मान करना है। अगर हम बुराइयां ढूंढने चलेंगे, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोई, जो दिल देखा आपनो मुझसे बुरा न कोई। ये भारतवर्ष की परंपरा है, ये विजडम है, ये बहुत गहन विजडम है। हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं, बुरा देखने चलते हैं और छोटे छोटे आप फेसबुक सोशल मीडिया इन इंटरेक्शंस को देखिए, आपको टॉक्सिक इंटरेक्शंस मिलेंगे। टॉक्सिक इंटरेक्शंस का मतलब जहरीले इंटरेक्शंस। क्यों? क्योंकि उससे समरसता नहीं बढ़ती, उससे सौहार्द नहीं बढ़ता, उससे हमारे भावनात्मक क्षितिज का विस्तार नहीं होता, वरन पूर्वाग्रह रूपी जहर हमारे अंदर हमारी धमनियों में दौड़ने लगता है। याद रखिए आप सभी परिवारों में हैं और आपके पास भाई और बहन भी है और आपके पास 1000 कारण होते हैं अपने भाई या बहन से चिढ़ने के, गुस्सा होने के, उससे लड़ने के, होते हैं कि नहीं? उसके बाद भी आप उससे प्यार करते हैं। क्यों? और क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि ये मेरा भाई और बहन है और मुझे उसमें कुछ सकारात्मक देखना है। और जिस पल आप ये संकल्प ले लेंगे कि हर भारतीय में irrespective of the background, irrespective of the language, irrespective of the culture, every Indian, I have to see good in an Indian. Believe you me, you will pave the way for a strong nation. बहुत सारे लोग, निंदा रस से अच्छा कोई रस नहीं होता। किसी ने कहा हमारी स्वाभाविक इंस्टिंक्चुअल प्रवृत्ति है लोगों की निंदा करने की, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की, परंतु एक अनुशासित फौज के रूप में, एक देश के युवा प्रबुद्ध नागरिक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप सौहार्द, पारस्परिक समझ, अन्यानुभूति का विस्तार करें ताकि एक दूसरे के प्रति समझ से उत्तम परानुभूति के साथ आप दूसरे के दर्द को, दूसरे की व्याकुलता को, दूसरे की पीड़ा को समझ सकें। परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये बड़ी गहरी बातें हैं जो कि हमारे वैचारिक क्षितिज में, उद्दात क्षितिज में हमेशा से रही है। They have always formed a composite part of our cultural landscape. क्यों? क्योंकि इन वैल्यूज को इनलाइवन करना हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है। हमें यह समझना है कि हम एक वैश्विक जगत में हैं। हम एक फौज के रूप में तैयार हैं गलत इंटेंशंस का मुकाबला देने के लिए। आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उसी समय हम विश्व भर में कामना करते हैं कि शांति स्थापित हो, क्योंकि ये शांति काल ही है
जिसमें व्यक्ति अपनी सर्वाधिक संभावनाओं को जी सकता है। एक सच्चा फौजी कभी भी युद्ध उन्मादी नहीं होता, वो हमेशा शांति का आकांक्षी होता है और वो अपने फौज का प्रशिक्षण इसलिए लेता है ताकि वो शांति को कायम रख सके, उन लोगों को जवाब देकर जो कि किसी भी प्रकार से शांति पर प्रहार करते हैं। आवश्यक है प्रिय बच्चों, प्रिय कैडेट्स, कि आप एक अच्छा स्वास्थ्य रखें। मैं विश्वास करता हूं एनसीसी ट्रेनिंग ने आपके अंदर स्वस्थ कैसे रहें इसका प्रशिक्षण आपको दिया है। हेल्दी इंडिया, कोविड के टाइम में आप नेसेसरी प्रिकॉशंस रखें एंड इवन अदरवाइज खाने पीने में अच्छी सोच आपके अंदर अच्छा स्वास्थ्य का संचार करती है। चरित्रवान हो, क्यों? इंग्लिश में कहते हैं इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक to a position of wealth and self-reliance. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, इस युवा अवस्था में आप अपने अंदर आदतें डाल रहे हैं। अगर आप अच्छी आदतें डाल रहे हैं, आप सकारात्मक चिंतन की आदतें डाल रहे हैं, आप पारस्परिक समझ की आदतें डाल रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदतें डाल रहे हैं, तो आप सफल होंगे, समृद्ध होंगे और आपका चरित्र आपके अंदर की नेतृत्व क्षमता को विकसित करेगा और आप एक सार्थक योगदान दे पाएंगे। परंतु मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, देयर कैन बी बैड हैबिट्स। आज आप जिस युग में जी रहे हैं, ड्रग्स आपके चारों तरफ घूमती है। आप जिस युग में जी रहे हैं, there are a lot of possibilities of sexual experimentation and many of which could be dangerous for your emotional and physical well-being, relational well-being. बहुत सारी चीजें जिनसे आपको अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि हो सकता है अभी भी चीजें आपको आकर्षक लगें, परंतु आने वाले भविष्य में वो आपके लिए शूल बन सकती हैं, कांटे बन सकती हैं, जो कि आपकी संभावनाओं को विकसित होने में रोक देंगी, जो कि आपको चोक कर देंगी, जो कि आपकी ग्रोथ को समाप्त कर सकती हैं। खरपतवार जब छोटी होती है उसे उखाड़ना आसान होता है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अभी जवान हैं, अभी जो चाहे वो कर लें, जब बड़े हो जाएंगे तो हम सुधर जाएंगे। बहुत सारे युवा लोगों से बात करने में ये विचार सामने आता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को संभालना चाहते हैं तो समय यही है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे, आप पाएंगे कि आदतों से बाहर निकलना मुश्किल होता है। जब एक पीपल का वृक्ष छोटा है, उसको एक पौधा है, आप उसको उखाड़ सकते हैं, पर जब वो बड़ा एक वृक्ष बन जाता है, उसे उखाड़ना असंभव होता है। और इसलिए ये समय आपका चरित्र निर्माण का भी समय है, जब आप आत्मावलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी वो आदत है जो आपके जीवन में मजबूती दे सकती। अच्छी, पॉजिटिव, इनेबलिंग, सकारात्मक आदतों को अपने जीवन में डालिए और आप जरूर से आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप योगदान देते जाते हैं, आपके राष्ट्र के प्रति योगदान आपका बढ़ता चला जाता है। और मैं यही बात पर समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, आप सभी अद्वितीय हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स अद्वितीय हैं, आपके बाल अद्वितीय हैं, आपका डीएनए अद्वितीय है। ईश्वर ने आपको बनाया, आपको सबको अलग अलग परिवारों में रखा है, क्योंकि आप अद्वितीय हैं। हम क्यों राष्ट्र प्रेम करते हैं? क्या इसलिए कि हमारा राष्ट्र सबसे अच्छा है? मैं सोचता हूं हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र पे गर्व होना चाहिए और अपने राष्ट्र को सबसे अच्छा मानना चाहिए। लेकिन क्या तार्किक रूप से, लॉजिकली, ये संभव है कि सभी सबसे अच्छे हों? ऐसा संभव नहीं है। हम अपने परिवार से क्यों प्रेम करते हैं? इसलिए नहीं कि हमारा परिवार सबसे अच्छा है, इसलिए क्योंकि ईश्वर ने हमें इस परिवार में जन्म दिया।
हम इस कॉलेज में से क्यों प्रेम करते हैं? हो सकता है हमारे कॉलेज से अच्छे अनेकों कॉलेज हो, लेकिन हम अपने कॉलेज से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि इसकी सामूहिकता में हम विकसित हो रहे हैं। ये हमारे जीवन में योगदान दे रहा है, हम इसके जीवन में योगदान दे रहे हैं, और हमारे बीच में एक रिलेशनशिप है, और यही राष्ट्र के साथ है। राष्ट्रभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम अपने राष्ट्र की कमियों के प्रति अंधे हो जाएं या दूसरे राष्ट्रों का हर समय आलोचना करते रहे। नहीं, राष्ट्रभक्ति का अभिप्राय यह है कि हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें इस राष्ट्र में उत्पन्न किया, यही हमारा कार्य क्षेत्र है, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है, और इन वृहद लोगों के समुच्चय में, सामूहिकता में हमें अपने जीवन का विकास करना है और सार्थक योगदान देना है। ये भावना है कि हम जाने हमारे कार्यों के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा, उस सामूहिकता में जिसमें हमारा जन्म हुआ, हम इसे और अधिक समृद्ध बना रहे हैं। और इसी पूरे विश्व के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप युवा लोगों के बड़े होने के साथ, उर्वर होने के साथ, हम एक सशक्त भारत का सपना, जो कि हम सबका सपना है, एक साझा सपना, एक आत्मनिर्भर भारत का सपना, एक उन्नत भारत के सपने को आप जैसे सकारात्मक सोच वाले, आप जैसे दृढ़ चरित्र वाले युवा लोगों के साथ हम आगे साकार होते हुए देख सकेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। Thank you, sir. Really, your words will prove to be the foundation on which the youth will equip themselves. Now, I would like to request Flight Cadet Rohit for a poem. Thank you, Vandana. Jai Hind, respected principal sir, Neeraj sir, and all the cadets. I'm here to recite a poem on Battle of Razangla. Before reciting the poem, I would like to give you some background over the Battle of Razangla. On 18 November 1962, 6,000 Chinese troops entered Razangla, a mountain pass just a little ahead of everybody's favorite Pangong Lake. It was winter with sub-zero temperature, no air support, no artillery support, not even bulletproof vest, nothing. There's no way India could win this. But our 1, 2, 3 British soldiers led by Major Shaitan Singh decided to fight back. There were 50 Chinese for every one Indian soldier. With 200 soldiers first, India managed to beat that wave. Then more soldiers in another wave, and more and more and more. At one point, our soldiers ran out of ammunition, but they didn't run out of bravery. The soldier had a chance to withdraw, but the second in command said, "साहब जी, पीछे हटने की मत सोचिए, एक भी अहीर कहा नहीं मानेगा, गला कटा लेंगे लेकिन 1 इंच भी जमीन चीनियों को नहीं ले देंगे." All these soldiers were shot down in the head or in the chest. Nobody ran away. मेरी ये कविता उस जवान को दर्शाती है जो उस पल वहीं मौजूद है, लड़ रहा है देश के लिए। वो अपने आखिरी पलों में क्या सोच रहा होगा, अपने सीओ साहब के लिए, अपनी पलटन के लिए, अपने साथियों की गाथा के लिए, और आखिरी में अपने परिवार के लिए। तो जवान कहता है कि शैतान नाम था उनका लेकिन काम किया महावीरों का, शैतान नाम था उनका लेकिन काम किया महावीरों का, चीनियों का चीर के सीना, चीनियों का चीर के सीना लिख दिया नाम भारत के शूरवीरों का, चीनियों का चीर के सीना लिख दिया नाम भारत के शूरवीरों का। रेजांगला का तोड़ गुर, रेजांगला का तोड़ शहादत को गले लगाया था, हमको माउनियों ने तान के सीना कयामत को यमराज से मिलाया था, हमको माउनियों ने तान के सीना कयामत को यमराज से मिलाया था। मौत थी निश्चय, मौत थी निश्चय, फिर भी बेखौफ गुमानी तूफान हमने अपनी रगों में बहाया था। मौत थी निश्चय, फिर भी बेखौफ गुमानी तूफान हमने अपनी रगों में बहाया था। 10-10 गोलियां खाकर भी इन चीनियों को उसी घर बर्फ में दफनाया था, 10-10 गोलियां खाकर भी इन चीनियों को उसी बर्फ में दफनाया था। सरहद पर कुर्बान होकर जिंदगी का सबसे अजीज सुख हमने पाया था, सरहद पर कुर्बान होकर जिंदगी का सबसे अजीज सुख हमने पाया था। मौत की आगोश में होकर भी,
मौत की आगोश में होकर भी दुनिया को भारतीय सेना का शौर्य हमने दिखलाया था। मौत की आगोश में होकर भी दुनिया को भारतीय सेना का शौर्य हमने दिखलाया था। So in the last stanza, our soldier describes about their family. जब पूरा देश चैन से सो रहा था, जब पूरा देश चैन से सो रहा था, एक घर ऐसा भी था जो पूरी रात भर रो रहा था। एक घर ऐसा भी था जो पूरी रात भर रो रहा था। फिर भी शहादत पर अपनी अफसोस नहीं गुमान है। फिर भी शहादत पर अपनी अफसोस नहीं गुमान है। हाँ मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरा मजहब हिंदुस्तान है। हाँ मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरा मजहब हिंदुस्तान है। थैंक यू। Thank you, Rohit. Now, it's time for Flight Cadet Shikha to present a patriotic song. Jai Hind to the Principal Sir, our CTO Neeraj Sir, and all the cadets, seniors, and everyone present here. I would like to present a patriotic song. Am I audible to all? Yes, Shikha, you are audible. You can continue. Okay. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम सब हैं भाई भाई, प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। जय हिंद। Thank you, Shikha. Now, I would like to request our CTO, Neeraj Sir, to present the vote of thanks. Audible? Sir, yes, sir, you are audible. Okay. So in the 30th day of our Atmanirbhar, and it was a great, as we were by the Professor S.P. Singh, who brought in front of us the new dimensions of thought related to the youth of. Thank you very much, sir, for giving us your valuable time, priceless thoughts with us. I am sure that all the partners a lot, and your presence has certainly benefited us. Sir, I would like to mention here that this entire event has witnessed great participation from the cadets, and it was not just limited to a few of them, but it extended to the entire NCC family with involvement in terms of anchoring, presentations, patriotic songs, poems,
I would like to thank all the cadets for the active participation. The technical committee and the media committee of NCC Air Wing has been very active in the organizing sessions and posting it regularly on our YouTube channel and Facebook. So thank you, each one of you, and I am sure that with this level of energy, our unit will grow further. Thank you very much. Over to you, Vanna. Thank you, sir. Really, it has been a very enlightening session for all of us. We would be taking a little time more where the cadets will share their experiences about the online sessions and the opportunities we got. So, firstly, Flight Cadet Rudy Pratap Singh will share his experience. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. You can continue. Thank you, Vandana. This is Flight Cadet Rudy Pratap Singh. I would like to share my experience thought out the Atmanirbhar Bharat awareness campaign. During this session from 1 August till today, we all have learned and explored about our prosperous India. We have learned about the cultural heritage, festivals in India, which is, we all know that these are the symbols of brotherhood in our country. Economic perspectives, which is very important for self-reliance India. And we have also learned about the eminent leaders of our country. My personal favorite was Dekho Apna Bharat because I'm quite fond of traveling. I have visited many cities of India like Delhi, Pune, Dehradun, Jaipur, Mathura, Binod, etc. Thank you, Vandana. Next up is Flight Cadet Siddharth. There is a network issue in Siddharth's connectivity, so I think we should move on to next. Okay. So now Flight Cadet Monica Solanki will share her experience. Jai Hind everyone, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. You can continue. Good morning and Jai Hind everyone. For me, these sessions make us more and more aware about the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Thank you CTO Neeraj sir and my fellow cadets for making these sessions just amazing. And I personally felt that yes, a change I can see in myself, that the phobia to speak in public is somewhere less now. The COVID-19 pandemic has posted a surge to the economy of the country. To overcome these testing times, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has come up with the Atmanirbhar Bharat Abhiyan that promotes local economy. By this session, I have learned a lot about our own country and the most importantly, the career options we all come to know about. Thank you. Jai Hind. Now, Flight Cadet Prarabh will share his experience. Good afternoon, all of you. I'm here to share my experience. So, first of all, thanks to all of you for making me the part of this campaign. So, I start like our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, exhibiting his leadership essence, announced on his nationwide report on 12 May 2020, Atmanirbhar Bharat Abhiyan, a call to the nation for self-reliance. In our NCC campaign, we have meticulously understand all the topics including under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. There are 5 pillars of Atmanirbhar Bharat Abhiyan: economy, infrastructure, system, vibrant demography, and demand. And we have all gone through these topics very meticulously. The stimulus is focused on strengthening India's cottage, home industry, small and medium enterprises, and all industries. And also the most important thing is the self-reliance is the only way to ensure that the 21st century belongs to India only. At last, I would like to say that it is a time to be vocal about a local product to make them global. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Last but not least, Flight Cadet Tripti Datta will share her experience. Am I audible to all of you?
Yes, ma'am, you're audible. Okay, thank you. Jai Hind. This is indeed very true that during this lockdown, we all got a bit deviated from our schedule, but these sessions came in as a booster. Partly because we got to interact with our NCC mates, and secondly because we now have to brush up ourselves, make presentations on the already familiar topics, but now with some facts and specifications. Besides these regular PPTs as well, we got to experience the talents of our subordinates. Many of among us have a gift of singing. Moving ahead, along with these activities, we sometimes had group discussions as well. Many students in classroom environment aren't this comfortable speaking in public. In an online environment, it becomes much easier to share our thoughts without the fear of judgment. E-learning doesn't just happen, it requires careful planning and implementation. Thank you. Thank you so much for sharing your experiences. Now, we have come to the end of our session. Thank you, Principal Sir, for giving us your valuable time, CTO Neeraj Sir for your guidance, and the cadets for their active participation. Have a good day.